18th question. OKAN company. ठीक है, इसको मैं जरा अभी OKAN company is a large listed company located in Yasia land, whose currency is Yasia dollar, manufactures engines and engine parts. It is considering whether or not to invest in one of two new 4 year projects. अच्छा, तो ये 4 साल के 2 प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस आए हैं, अल्फा प्रोजेक्ट एंड बीटा प्रोजेक्ट. Details of both projects are given separately. Previously, OKAN company has used relevant risk-adjusted discount rates to calculate the net present value of the projects. However, the finance director believes that calculating adjusted present value of the projects would be more appropriate. Wow. OKAN company wants to base its decision on which project to invest in on the returns generated by the project's risk as measured by their project durations and important non-financial aspects. Both projects are due to commence in 6 months time. दोनों projects 6 months time में ही commence होने वाले हैं. Okay. Jeez. Okay. Funding for projects Alpha and Beta. Project Alpha and or Project Beta will require the same amount of initial funding, which is 5 crores Yasia dollar. Proceeds from the sale of factory based in Europe in 6 months time for euro 1 million, नहीं 10 million will provide part of the funding. तो देखो ये चीज यूरोज में है, ये चीज यासिया डॉलर्स में है. will provide part of the funding and the balance will be financed by debt borrowing. ठीक है, तो बाकी का जो है वो डेट बोरोइंग से फाइनेंस किया जाएगा. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. पहले पूछा गया डिस्कस वाई अ कंपनी में प्रेफर यूजिंग एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड रादर देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ये तो बेसिक थियोरी है, इजी सा है. आप बताओगे? बिकॉज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम जो कॉस्ट एनपीवी में नहीं लेते, जैसे अपना इशू कॉस्ट है ये और अपना जो टैक्स सेविंग कॉस्ट है वो सब हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट और क्लियर आंसर देता है अपने को, इसलिए वो बेटर परफेक्ट. रहता है कि हमें कॉस्टिंग का भी पता हो जाएगा। परफेक्ट. बेसिकली ये भी रहता है कि जो डेट रहता है ना, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा और उसके ट्रांजैक्शंस या वेरिएबल्स बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेंगे, इसके वजह से यूज किया जाता है. ठीक है, बराबर बोला हम्म। आपने. 260. हाँ, एक मिनट ना, 270 थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ. क्या ये है वो क्वेश्चन? हाँ, यही लग रहा है. एक मिनट ना, इधर ऊपर 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 ना लैग करता है ना ये. वेरी गुड. और नीचे चला गया अभी ये. हाँ, ये रहा. एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू सेपरेट्स आउट प्रोजेक्ट्स. वाओ, क्यों इतना खराब है भाई मेरा लैपटॉप. हाँ, adjusted present value separates out projects cash flows and allocate a specific discount rate to each type of cash flow dependent on the risk attributable to that particular type of cash flow. Net present value discounts all cash flows by average discount rate attributable to the average risk of a project. One reason why APV may be preferable to NPV is because by separating out different types of cash flows, the company's managers will be able to see which part of the project generates what proportion of project's value. Furthermore, allocating a specific discount rate to a cash flow part helps determine the value added or destroyed. In this example, OKAN is able to determine how much value is being created by the investment and how much by the debt financing. For complex projects, investment related cash flows could be further distinguished by their constituent risk factors where applicable. Okay, ये इसका जो pronunciations है और इसका जो
बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आंसर है ये एक्चुअली। ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो उन जो जो सारे वेरिएबल्स हैं उनका अलग अलग रिस्क होगा और उस अलग अलग रिस्क को ये अलग अलग रेट्स के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये आई थिंक यहाँ का मेन हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, हम्म, चलो अभी एस्टिमेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेट बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय ओकॉन। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डेट बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय ओकॉन। अभी ये हमको कैसे पता चलेगा? हम्म, यहाँ पे इन्होंने हमें दो अलग अलग ऐसे रेट दिए हुए, एक है फॉरवर्ड और दूसरा है मनी मार्केट हेजिंग। सो लेट्स यूज दैट। सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है, हमको ये 50,000 रुपए इनिशियल फंडिंग के लिए चाहिए, लेकिन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फैक्ट्री इन यूरोप 6 मंथ्स टाइम में इतने की होने वाली है। बी का फर्स्ट पार्ट 10, यहाँ पे एक एक दो तीन यूरोज। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम लोग करते हैं फॉरवर्ड रेट के हिसाब से या फिर फॉरवर्ड मार्केट में उस ट्रांजैक्शन को। और फॉरवर्ड मार्केट में करने जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? यूरोस वर्किंग नोट्स पहला वाला फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स येन डॉलर, ये आता है यहाँ पे यूरोस। 1 यूरो इज इक्वल टू 6 मंथ्स फॉरवर्ड ही चाहिए क्योंकि 6 महीने में ही आने वाला है। तो 2.5462 2.6121 ये यूज करेंगे। 2.5462। ठीक है, ये यूरोज यहाँ पे आने वाले हैं इसमें। सो the same shit will be written here। तो वो आता है 2.6121 2.6121। तो अभी मैं ये यूरो लेके बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मेरे को कम रेट पे परचेज करके देगा। येन डॉलर्स, so this into this, बैंक विल बाय एट लो। ठीक है ना, बैंक विल बाय एट लो। तो ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट, ये हो गया मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, देखो नीचे दिया हुआ है, ऐसे ही रेट दिया हुआ है मनी मार्केट जैसे। मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं, राइट? अगर मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां की करेंसी में लोन ले लूंगा। स्टेप 1, टेक लोन इन दी फॉरेन फॉरेन करेंसी, टेक लोन इन द फॉरेन करेंसी। तो कितना, मैं यूरोज ना, यूरोज कितने, 10 मिलियन यूरोज इतने मेरे को आने ही वाले हैं। इतने मैं लोन ले लूंगा। अब इस लोन के ऊपर मेरे को ऐसा ही है ना, डिपॉजिट करूँ।
या मैं श्योर लोन लूंगा तो अभी मेरे को इसके ऊपर, इस यूरोस के ऊपर इंटरेस्ट रेट पड़ता जाएगा लोन्स का, बराबर है। वो अभी मेरे को कितना पड़ता जाएगा। मैं बोरो कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बोरो कर रहा हूँ यूरोजोन में 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 2.2%। मनी मार्केट है 2., एनुअली 6 मंथली, तो वो आता है दिस इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट इज 1 प्लस दिस। नहीं 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 नहीं, डिवाइड डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। दिस इज यूरोज। ठीक है, मैं इतने का ऑलरेडी लेके रखूंगा यूरोज। अभी मैं इतने का ही लोन लूंगा ताकि आगे चल के जब मुझे इंटरेस्ट बैठता जाए तो मुझे इतने जो रिसीव होने वाले यूरोज ये मैं उस टाइम पे पे ऑफ कर दूं। आपको मनी मार्केट हेज पता है ना कैसे वर्क करता है। हाँ, उस दिन किया था। तो एक लोन बट फॉर अभी क्या क्या, नहीं नहीं कुछ। बोलो ना। अरे आप बात कर रहे थे कुछ। एक्सचेंज दैट करेंसी इनटू आवर डोमेस्टिक करेंसी। अभी इसको डोमेस्टिक करेंसी में लेके आएंगे। तो अभी इसको डोमेस्टिक करेंसी में कैसे लेके आएंगे, यूरोस। अभी बैलेंस ऑफ फंडिंग रेज डोमेस्टिक डेट बोरोइंग थ्रू 4 ईयर सब्सिडाइज लोन, नहीं वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। स्पॉट रेट पे, हाँ स्पॉट रेट पे लेके आएंगे क्योंकि मैं आज के आज ही वो सारे के सारे पैसे लेके आ रहा हूँ ना। मैं कल नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आज के आज ही लेके आ रहा हूँ। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पॉट रेट में स्पॉट एक्सचेंज रेट 2.5210, 2.5210, और यहाँ पे आएगा 2.5862। ठीक है। तो अभी अगेन मैं बैंक के पास यूरोज लेके जाऊंगा। मैं बैंक मेरे से बाय करेगी तो बैंक विल बाय एट लो। बैंक विल बाय एट लो मतलब कौन से रेट पे, इस वाले पॉइंट रेट पे। फाइव हम्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा यूरोस का वैल्यू, सॉरी ये मुझे मिलेगा डॉलर। येन डॉलर का वैल्यू। बी स्टेप 3, deposit this amount in our domestic currency bank, in our domestic bank, and gain the interest on the same. तो दिस करेंसी, इसको मैं लेके आऊंगा, अभी इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं इन्वेस्टिंग का 2.4% अगेन फॉर 6 मंथ्स। तो अगेन ये है बोरोइंग का, ये है इन्वेस्टिंग का 2.4%। 2.4% लिखा ना मैंने वहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस this into this gives me value in yen dollar. So how much money I'm receiving? Son of a bitch. Forward market is the answer. Wow. Thus we will be hedging with the help of forward market. So हमारा 25,46,200 will be
utilized as sale of foreign subsidiary अभी उन्हें कुछ तो बोला था बैलेंस ऑफ द फंडिंग रेज्ड बाय डोमेस्टिक डेट बोरोइंग will be through a 4-year subsidized loan on which interest is payable 2.1%, although OKAN normal borrowing rate is 5%. अच्छा तो ये सब तो अभी irrelevant है, हमें हमें बस बताना है एडिशनल डेट कितना लेना है. टोटल फंड्स रिक्वायर्ड 50 1 2 3 1 2 3 additional debt required. So this is my answer. आपका हो जाए तो बताना. ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. 24538 ही है क्या? टू पर ने दिया हुआ है बट नीचे से चेक करते हैं. ये देखो 2456, तो देखो बराबर मिनिमम बोरोइंग लगा 24538. 24538, हाँ हमको भी उतना ही चाहिए ना. 24538, यस परफेक्ट. चलो गुड, तो ये पहला पार्ट तो आराम से हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्या पूछा है नेक्स्ट में? वो लोग पूछ रहे हैं हमसे Project Alpha and Project Beta's base case NPV in 6 months time before considering the financing side effects. वो और वही 12 मार्क्स के लिए है. हम्म 6 मंथ टाइम लेना है ना. बेस केस एनपीवी पूछा है ना शायद. एनपीवी अच्छा हाँ, इन बेस 6 मंथ्स टाइम. बोला है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा. बिफोर कंसिडरिंग फाइनेंशियल साइड इफेक्ट. हम्म पता नहीं फर्स्ट 6 मंथ्स टाइम ऐसे क्यों दिया, पता नहीं. चेक करते हैं एक बार. इसका खाली ध्यान रखना कि ये यहाँ पे ना डेट जो है वो हम सब्सिडाइज लोन से बोरो कर रहे हैं. ठीक है, खाली ध्यान रखना है. प्रोजेक्ट Project Alpha's base case NPV and APV in 6 months' time will be the project when the project will commence should be estimated using the following information. Sales and the sales revenues and production cost related to Project Alpha in 6 months' time before any annual price or cost increases are estimated as follows. ऐसे ही लेंगे ना सब कुछ. हम्म Sales revenue, production cost, sales revenue 15750 15750 28350 47250 23100. फिर यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट. सेल्स रेवेन्यू यूनिट में दिया है क्या? क्या बात कर, नहीं 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 वैल्यूज ही है.
तो फिर यहाँ पे क्यों दिया हुआ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स प्राइस विल इंक्रीज एट एनुअल इन्फ्लेशन। ओ गॉड व्हाई वुड नहीं, वो बराबर है, वो बढ़ेगा। लाइक वो ऐसा ही है। बेसिकली अभी आपको मैं आपको बताता हूँ आपको वर्किंग कैसे बनानी है। बट ये टाइम वेस्ट है ना यार, ये सब। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी आपको ऐसे रखना है। सेल्स रेवेन्यू, कंट्रोल एक्स दबा दिया था शायद मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे आप करोगे इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन, इसलिए उन्होंने वो 6 मंथ्स टाइम का दिया है। अभी expect that the sales price will increase at an annual inflation rate of 10%। अभी पहले साल में 10% ही चार्ज करेंगे ना कि 5% करेंगे? 10% ही करेंगे ना। है ना? 1.1, फिर इधर अपन करेंगे 1.1 इंटू 1.1, अगेन इंटू 1.1 इंटू 1.1। ये करने के बाद जो सेल्स रेवेन्यू आएगा, दैट विल बी आवर सेल्स ना। दैट विल बी आवर सेल्स। सन ऑफ अ बिच। अभी सेकेंड चीज, प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें नहीं है ना कुछ। दिया है ना उधर नीचे उन्होंने। उसमें भी दिया है। हाँ ना। The domestic production costs are likely to increase at ACCA Land's annual inflation rate। अच्छा ओके। बट ये कितना है यहाँ पे, 6120, 10710, 21420। In addition to the above, components were imported from UK currency। भाई एक बेस केस एनपीवी निकालना था यार, सिर्फ एक बेस केस एनपीवी निकालना था। मे भी। इसीलिए तो वो 12 मार्क का है। नो। इतना मार्क्स आ रही है इसमें। नहीं तो थोड़ी ना ऐसे मुफ्त में 12 मार्क्स बांटते वो लोग। वो बात भी है। अभी कंपोनेंट कॉस्ट यूके की करेंसी में कितना है? यूके की यूरोज करेंसी में है। में यार वो पाउंड्स है, मीन कम ऑन। अरे यार। 00, 1800, 3700, 1400। गॉड इज जस्ट मतलब वो टेस्टिंग माय पेशेंस। भाई मेरा एक तो मेरा पीसी हैंग कर रहा है, फिर ये ऐसे एनपीवी के सम आ रहे हैं। मैं ये सोच के आया था कि भाई फॉरेन एक्सचेंज आकर ऐसा मतलब मस्त कुछ करूंगा, ये आ गया। The costs of the components from UK are fixed and not subject to inflation। तो चलो ये एक assumption भी बन गया, तो ये सारा कॉपी पेस्ट करके वहां पे लिखते जाएंगे। The funds of ये डॉलर्स 5 crores for project alpha will be used to purchase plant and machinery। हाँ राइट, गुड। सो इन्वेस्टमेंट, एक दो तीन, एक दो तीन। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर दूंगा, यहाँ पे फोर्थ पे टैक्स अलावेबल डेप्रीसिएशन। Tax liable debt is available at 25% on reducing balance basis। Plant and machinery 25% debt on reducing balance basis है वो। So this, this, this। अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ फिर?
Balancing allowance or charge applicable at the end of the project. Plant and equipment is sold for 1 CR post inflation. ठीक है. Sold for एक एक दो तीन कहता है बैलेंसिंग अलाउंस. आप ऐसा चेक करने वाले हो क्या बीच बीच में कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, कि ऐसा नहीं, कि मेरे को टाइम नहीं नहीं मिल मैं रहा है. करके वो ही करके अब फिर वो फ्लो टूट जाता मेरे को लगता है कभी कभी। मतलब हम्म. थोड़ा जो कर रहे हो वो भी। हम्म. और मेरा तो पेपर ही फिनिश नहीं हो रहा है, तो मैं तो सबसे पहले वही देखने वाला हूँ कि भाई पेपर बस फिनिश हो जाए कैसे भी करके. तो यहाँ पे आता है टैक्स. अरे सेम चीज ही तो आनी है, बस यहाँ पे नेगेटिव में आनी है. तो बोलो. वैल्यूज ना इन थाउजेंड्स तूने ऊपर का रेवेन्यू और प्रोडक्ट लिया Oh हुआ है और my वहां god. Oh my god. Just kill me, please. Just once kill me. Oh my god. ऐसा एक दो तीन. अलग अलग क्यों दिख रहा तेरे को? एक दो तीन. एक दो तीन. एक दो तीन. आई जस्ट रियलाइज कि अगर मैं बस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर देता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक दो हाँ तीन. मैं वही की इन्वेस्टमेंट को ही एक दो वापस तीन. डिवाइड करूँ। एक दो तीन. वो सोचो ना, अगर ये एग्जाम में होता है एनपीवी, क्या नेगेटिव में आता फिर वैल्यू मेरे को. शिट. एक दो तीन. एक दो तीन. एक दो तीन. चलो ठीक है, मैं ऐसा एकदम मिल गया तो मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया. फिर टैक्स लायबल डेब्ट ठीक है 25% का, ये भी मैंने पे पोस्ट एनिमेशन बेच रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ, तो मैं कितने का बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ एक एक दो तीन. एक दो तीन. कितने का मैं बेच रहा हूँ. At the start of every year, Project Alpha will require working capital in the first year. Will be 10% of the first sales revenue. Fifth, working capital 0, 1, 2, 3, 4 particulars sales revenue. पर यहाँ पे आता है अभी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, तो वो आता है इसका 10%. 10%. फिर ये आता है अभी इंक्रीमेंटल का वर्किंग कैपिटल माइनस सम working capital. In subsequent years, the project will require increase or reduction in working capital of 15% for every $1 increase. खाली पहले साल के मतलब वो 10% है, बाकी के सालों के लिए 15% है. मैं फ्लो में आते हुए 15%. ठीक है, ये भी हो गया. Working capital is expected to be fully released in project alpha. ठीक है.
एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन येन डॉलर एंड पाउंड इन 6 months टाइम, वो भी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन येन डॉलर एंड pounds in 6 months time is expected to be 3.03 per 1 euro. कैसे करें अभी इस चीज को? Applying the purchasing power parity theory, S0 1 plus HC upon 1 plus HB S1। मैं ये इस बार तेरी तरह ट्राई करूंगी। प्लांट स्लैंटिंग ना। अभी दे आर सेइंग कि एस तो 3.03 ही है, सो हमेशा ये तो लास्ट ईयर का S1 ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है ना? और ये जो होगा ये होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय काउंटर करेंसी अपॉन बेस करेंसी। ठीक है, सो अभी मुझे हर जगह पे बस बेस करेंसी और काउंटर करेंसी का इन्फ्लेशन ढूंढना है। एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स आर करेंटली 2% इन यूके एंड 4% इन यासिया लैंड। सबसे पहली बात तो मुझे 4% इन यासिया लैंड मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट 4% का था, वो उन्होंने खुद ने बताया हुआ था 0.04 कि यासिया लैंड के इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से वो चेंज होने वाला है। दे हैड सेड दैट। अभी कंपोनेंट कॉस्ट, सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन अगर अब मुझे चार्ज करना है तो मुझे सबसे पहली बात तो ये देखनी है। यार मुझे बताओ ना, मैं नेक्स्ट ईयर सेम रेट के ही लिए लोगे ना? क्या लूंगा? नहीं, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अभी का स्पॉट रेट 3.03 है, बराबर है। हम्म। अभी 6 महीने पहले स्पॉट रेट 3.03 है, लेकिन मेरा जो ईयर वन का क्लोजिंग है वो तो मेरे ईयर जीरो का, सॉरी, जो मेरे ईयर वन का ओपनिंग है वो तो मेरे ईयर जीरो का क्लोजिंग रहता है ना। लेकिन मैं तो ईयर जीरो, क्या क्या? 6 महीने के बाद वो 3.03 हो रहा है, देखो ना। अच्छा हाँ, इन 6 months टाइम, ओके ओके ओके, यस यस यस, हाँ फिर बराबर, फिर बराबर। अभी काउंटर करेंसी में 1.02 ही है हर जगह पे, और बेस करेंसी में 1.04 ही है। इन्फ्लेशन रेट्स विल नॉट चेंज बोला हुआ है उन्होंने, सो दैट्स गुड। हम्म। परफेक्ट। तो अभी कंपोनेंट कॉस्ट मुझे ऐसे करेंगे तो मिल जाएंगे, बस मुझे अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस रेट के साथ। कॉस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स के। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अप्रेजिंग द बेस केस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज 10%. Okay, OKAN company pays tax at an annual rate of 10%. Tax is payable in the same year as the profits it is based on.
OKAN company makes sufficient profits from its other activities to take advantage of any tax relief. तो बेसिकली जब ये ऐसा सेंटेंस दे देते हैं तो मुझे इधर टैक्स लिख के इज इक्वल टू माइनस दिस 20% ये करूंगा तो मुझे हर जगह पे वैल्यूज मिल जाएंगे। एंड अभी मुझे लास्ट में क्या करना है, बस कैश फ्लोज निकाल के बेस केस एनपीवी। डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का आता है 0.909, 0.826, 0.826, 0.751, 0.683। तो मुझे एनपीवी तो आ जाता है 6 लाख 67 लाख समथिंग समथिंग। For some reason I just regret doing it in full figures now. हाँ, अभी उसने इन 6 मंथ टाइम हम्म। बोला है, तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसका इफेक्ट अगर कॉस्ट ऑफ उन्होंने कैपिटल में अलग नहीं है। से दिया रहता कि कुछ मतलब ये है कि भाई ये एड ऑन या फिर ऐसा कुछ है तो करना पड़ता ना हमें। हाँ हाँ, यस, बराबर। कुछ एड ऑन कॉस्ट उसमें रहेगा तो वैसा। हम्म। चेक कर ले। अच्छा, आप कहाँ तक पहुंचे? डिस्काउंट फैक्टर लगा रही हूँ। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, लगा लो पहले, फिर चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो अभी चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू बराबर आया है कि नहीं। एनपीवी नो, एनपीवी हमको मिला है 5272, हमको मिला है 677, मतलब 6700। हाँ, चेक करते हैं। मैं बोला ना वो मुझे लगता है वो एक्सचेंज रेट पे कुछ तो रहेगा। 3708 है क्या कंपोनेंट कॉस्ट? नहीं, 3708 नहीं है, वही वही उसका ही है कुछ तो। क्या हो गया एक्सचेंज रेट में हमें? बाकी सब तो सही है। एक्सचेंज रेट 3.03। हाँ सही है, 3.09। काउंटर करेंसी। अच्छा एक मिनट, हम कौन सी करेंसी है वैसे? हम कौन सी बेस्ड कंपनी है? ये है येन है। येन है, हम लोग तो येन है, तो बेस करेंसी येन की रहेगी ना। इन्होंने उल्टा लगाया है एक्चुअली डिस्काउंट फैक्टर, आप देखोगे ना यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी, तो इन्होंने उल्टी लगाई है। इन्होंने 1.04 ऊपर डाल दिया है डिवाइड बाय 1.02। कुछ रीजन रहेगा ना उसका भी। वैसे दिया तो नहीं है।
नहीं, वैसे दिया तो नहीं है। सोचे क्या इस बारे में उन्होंने क्या किया है? बेस डिवाइडेड बाय उन्होंने ये किया हुआ है। हम्म। बेस करेंसी डिवाइडेड बाय द वो काउंटर करेंसी। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद इन्होंने हमें S1 दिया हो रादर देन गिविंग अस S0। ये हो सकता है ना? हम्म। इन्होंने शायद हमें S1 दिया हो रादर देन गिविंग अस S0। टाइम में गैस अपना इतना है। बट देन फिर भी S0 अगर उन्होंने दिया है तो भी पता नहीं, आई डोंट गेट इट। ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है? 0.04 1. पूरा पूरा आंसर। ऐसा करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 5249। उनको आया है कुछ तो 5250 ना समथिंग। 5272 आया है। अब दैट इज बिकॉज ऑफ द मतलब वो राउंडिंग ऑफ का ही थिंग है मुझे लगता है। बाकी राउंड तो ऑफ। है ना, बाकी कुछ ऐसा गलत तो नहीं लग रहा है मेरे को पूरे इसमें। S0 इज होम करेंसी राइट। अपना जो होम ग्राउंड पे रहता है वो। हाँ हाँ, बराबर। तो उन्होंने S0 तो दिया अपने को, डॉलर ही तो दिया है अपने को। हाँ बराबर, बराबर बोल रहे हो आप। ठीक है, आगे करते हैं। क्योंकि ये भी इसके ऊपर अभी और क्या होगा पता नहीं। अम, हम्म आगे 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 बढ़ते हैं। तो ये अपने को बेस केस एनपीवी मिल गया। अभी ये हो गया अपना प्रोजेक्ट अल्फा का। प्रोजेक्ट बीटा का क्या सीन है अभी? प्रोजेक्ट बीटा के लिए उन्होंने दिया हुआ है प्रोजेक्ट बीटा ड्यूरेशन कैलकुलस 2.43 बेस्ड ऑन करंट बेस प्रेजेंट वैल्यूज। ओके। इन्होंने हमको करंट बेस प्रेजेंट वैल्यूज दिए हुए है। हमको एनपीवी तक पहुंचना है। ओके। Given below are the project's beta base present values based on the project start date in 6 months' time, discount at the project's relevant risk-adjusted all equity finance discount rate. It can be assumed that the working capital requirements for project beta are included in the annual cash flows. ठीक है। प्रोजेक्ट बीटा कैश फ्लोज, तो प्रोजेक्ट बीटा वैल्यूएशन लिख दूंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग ये? एनपीवी, हाँ। बेस केस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बीटा अभी ईयर 0 1 2 3 4। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यूज दिए हुए सामने से 84850 19360 22340 एंड 4950। अब इन ड्यूरेशन कैलकुलेट करते टाइम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग
एन इंटू नेट प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, राइट? एन इंटू प्रेजेंट वैल्यू तो दिस इंटू दिस, बराबर है ना? ऐसे ही करते हैं ना? बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग को तो खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना? हमें एनपीवी चाहिए ना। हाँ, हमको तो खाली एनपीवी चाहिए, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं फालतू में ड्यूरेशन वगैरह? इन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हम लोग का ऐसी इन्फॉर्मेशन में कुछ काम नहीं है ना। माइनस माइनस दिस, एक दो तीन, 1000 इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, हाँ, this into 1000 gives me my NPV, प्रोजेक्ट बीटा। हो गया। 33,67,500। क्या ये मार्क यही के है क्या? लिए। क्या क्या? इतना ही है क्या? ये मार्क। पता अच्छा, नहीं, पता 12 नहीं, मार्क। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये लोग एपीवी पे आ गए सीधा, रुक जा। कर ही देगा। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस केस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बीटा, ये लोग ने ऐसे ऐसे सब ऐड किया, -50,000 किया। -50,000 क्यों किया एंड नॉट माइनस क्यों नहीं? अच्छा देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इट कैन बी अज्यूम दैट एनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट बीटा आर इंक्लूडेड इन द एनुअल कैश फ्लोज ऑलरेडी। तो हमको यहाँ पे -51,7,235 नहीं लेना था, सिर्फ -50,000 लेना था, ऐसा। तो हम्म। आ जाता है 51 lakhs, जो उनको भी आया है 51 lakhs। ठीक है। बराबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी। तो इतना इजी आता तो भी मेरे को डाउट आता है। प्रोफेशनल लेवल पे इतना इजी थोड़ी आएगा करके। हाँ, वही, वो तो होता है। अभी प्रोजेक्ट अल्फा एंड प्रोजेक्ट बीटाज एपीवी इन 6 months टाइम, वो निकालना है 6 मार्क के लिए। मुझे नहीं पसंद है। पहले तो इश्यू कॉस्ट निकालेंगे। लोन खाली 2 लाख, वो 245 का लेंगे, बराबर। बराबर बराबर। यहाँ पे आएगा एपीवी ऑफ अल्फा। एपीवी ऑफ अल्फा कैसे आएगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट बेस केस एनपीवी ऐसे रखा हूँ। फिर आएगा इशू कॉस्ट, फिर सब्सिडाइज लोन है यार, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वही मैं बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को एपीपी नहीं पसंद। सिर्फ बाजू बाजू में करे क्या? अभी मैं भी वही सोच रहा हूँ रादर कि है देन तो सेम ऊपर ही चीज। अमाउंट में, हाँ, एक अल्फा और एक बीटा। वही वही ज्यादा बेटर लग रहा है। अभी सबसे पहले यहाँ पे आएगा इशू कॉस्ट। मैं सबसे पहले मैं फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ, एपीवी इक्वल टू सम
चलो, इशू कॉस्ट आर 3%, सो 97 3। ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा 97 के बाजू में, तो मेरा इशू कॉस्ट कितना आता है, कितना आता है अभी ये जो है वो नॉर्मल लोन से हमने नहीं लिया है, हमने लिया है सब्सिडाइज लोन से। सब्सिडाइज लोन पर्टिकुलर्स, हाँ, सब्सिडाइज लोन, नॉर्मल लोन डिफरेंस। तो सब्सिडाइज लोन भी मैंने सेम अमाउंट का ही लिया रहेगा, और नॉर्मल लोन भी मतलब ऐसा अज्यूम करके जाएंगे कि अगर मैं लेता तो मैं सेम अमाउंट का लेता। फिर आता है इंटरेस्ट, 1 और 3। इंटरेस्ट रेट, वो कितना है, 2.1% और 5%, 2.1% and 5%. So my interest comes down to this into this for 1 year। लेकिन मेरे को कितने टाइम का चाहिए, 4 year सब्सिडाइज लोन चाहिए, और मैं रेट लूंगा 5% का। तो 5% का 4 साल के लिए एन्युटी कितना आता है, वो आता है 3.546। T for 5% at the rate of 4 years into 3.546। Interest amount saved, interest amount saved। फिर आता है यहाँ पे टैक्स, टैक्स तो मैं सीधा इसके ऊपर ही कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि सेम ईयर में ही पेएबल है। अच्छा, आपको ये पता कि नहीं पता नहीं कि अगर आपको टैक्स अगर 1 साल बाद का आया है ना, तो आपको एन्युटी हम्म। भी 1 साल बाद की लेनी है और पहले साल वाली माइनस करनी है। बट ये तो इसी साल में है ना, ये वाला क्वेश्चन। हम्म। उनके सेंटेंस भी मिल नहीं रहा है लेकिन टैक्स का। मिला सेम ईयर, ठीक है। 20%। हम्म so now this is the so now tax claim lost, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, सब्सिडाइज्ड लोन, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट सेव्ड, टैक्स क्लेम लॉस्ट एंड टैक्स शील्ड ऑन सब्सिडाइज्ड लोन। सो अभी ये तो हर जगह पे सेम ही आएगा, है ना। This tax claim lost, this tax shield on subsidized loan, this, ठीक है ना। सो अभी सेम चीज यहाँ पे
फुल फिगर्स में नहीं करना चाहिए था यार, कितना मतलब मेरे को रिग्रेट हो रहा है अभी। चलो एपीवी तो कैलकुलेट हो गया 6 महीनों के लिए। 1 मिनट, इन 6 मंथ्स टाइम, अरे यार ये बार बार ऐसे इन 6 मंथ्स टाइम जो दे देते हैं ना साले, तो ऐसा ये हो जाता है ना कि शिट यार कहीं मैं 6% से प्रोपोर्शनेट करना तो नहीं भूल गया। ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे को लग तो नहीं रहा है ना। कुछ नहीं करना, बिकॉज वो 6 मंथ के बाद हम 4 मंथ का लेंगे ना। हाँ मतलब वही। वो गैप अपन 6 मंथ के बाद का ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, गॉट इट। उसका कुछ होता तो शायद हेजिंग के लिए है, जो भी है वो 6 मंथ का। वही वही वही। चलो फिर अपना बेस केस एनपीवी चेक कर लेते हैं, आपका हो जाए तो बताना। ठीक है। एपीवी ना। हाँ एपीवी, सॉरी एपीवी। कहाँ तक पहुंचे आप? हो गया ऑलमोस्ट। फिर मैं आपको टैक्सी। शेयरिंग देता। टैक्स शील्ड का क्या, चेक कर लो। एपीवी। एक सेकेंड ना। आराम से, कोई गई नहीं। ठीक है। ठीक है। मेरे को समझ, मैं टेक्सटाइल में क्या कर रही थी पता है? मैं हम्म। ना दिस माइनस दिस कर रही थी। मतलब वो गलत था, हमें टेक्सटाइल तो जितना ये वाले लोन का मिलेगा वही लेंगे ना, उसमें थोड़ी हम डिफरेंस हाँ लेंगे। बराबर। जिसमें मेरे को कुछ समझा तो नहीं, बट ठीक है। मतलब सब्सिडरी माइनस एक्चुअल का वो ले रही हाँ थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, 6897। नहीं लेकिन हमने इशू कॉस्ट कितना है हमको, 75890 बराबर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाँ। टैक्स शील्ड एंड लोन सब्सिडी बेनिफिट, उनको ये सब करके मिला है 2 लाख। अपने को मिला है 23,84,000, उनको मिला 23,84,125। अपने को 121 मिला है, हाँ तो अपने को भी सब सही मिला है। तो अपने और उनके आंसर में इतना बड़ा गैप कैसे आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, इस केस में तो हमारा एनपीवी ही थोड़ा सा अलग है ना। इस केस में तो हमारा एनपीवी अलग आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट राउंडिंग अप कैन ऑल, वो टैक्स वैक्स के इफेक्ट से। तो ये अल्फा का तो थोड़ा अलग ही आएगा आंसर, वो जाने दो। एक्चुअली बहुत बड़ा गैप है, 23,000 का गैप है। पता नहीं राउंडिंग अब इतना पता नहीं खाएगा कि नहीं, बट ठीक है। फिर सेकंड है 6,72,00,50 या ऐसा 67,25,218। हाँ बीटा तो बिल्कुल सही है, बीटा सही है। हेलो, आवाज आ अच्छा रही है? क्वेश्चन था ये।
हाँ मतलब बहुत हेलो मुझे हाँ बहुत हाँ, बोलो लेंदी बोलो। क्वेश्चन हाँ, लेंदी तो था। कैलकुलेशन पार्ट से। हम्म। और कुछ बाकी है क्या इसमें? प्रोजेक्ट अल्फाज हाँ ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द बेस केस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज। कोई बात नहीं, ये तो इजी है प्रोजेक्ट अल्फा का, खाली अभी। एक्चुअली वो तो यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा। करके निकालते हैं वो ना ड्यूरेशन तो हाँ, ड्यूरेशन। एक मिनट, पेबैक हाँ। मेथड ना। नहीं नहीं नहीं, ये पेबैक मेथड नहीं है। ये आपको बताऊं क्या क्या है। ये हम वो ड्यूरेशन निकालते वैसा, लाइक वो। रुक जा, बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यूज हमने निकाले। प्रेजेंट वैल्यूज सबसे पहले यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख देने के। तो ये यहाँ पे खाली ओके ईयर्स, वो ईयर वन से ही आएंगे। ठीक है ना, ईयर वन से ही आएंगे। कहाँ गया वो अभी? ये सब छापना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ये रहा। ये सब ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पे n इंटू प्रेजेंट वैल्यू करने का। अब n कितना है मेरा? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करने का। दिस इंटू वन। तो ये हाँ हाँ करते हाँ ये रहने का। याद है। है ना? फिर दोनों को फिर। डिवाइड करना है। हाँ। परफेक्ट। याद आया मैं। 3.04 ईयर्स आ रहा है मेरे को। सी दिस शुड मैच, अगर हमारा बेस केस एनपीवी सही होगा तो। 3.04 ईयर्स, देखो 3.04 ईयर्स परफेक्ट। सो एक्चुअली ये जो डिफरेंसेस थे, ये मुझे लगता है बेसिकली सिर्फ वो राउंडिंग अप के वजह से ही थे। बस वो हमने फुल फिगर्स में कर लिए तो वो बहुत ज्यादा आ गए, आई फील। कि वो टैक्स में भी इफेक्ट पड़ गया उसका, फिर उसका हम्म, प्रेजेंट वैल्यू में भी इफेक्ट पड़ गया। वैसा 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 वो होते गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड होते गया। वरना आई डोंट फील देर इज एनी प्रॉब्लम। और इन सब के बाद हमको फिर भी 12 मार्क का क्वेश्चन बच जाता है, जो है थियोरी। आपको करना है या इफ या यू वांट टू गो? नहीं नहीं करते हैं। ठीक है। Evaluate and justifies which project OKAN should choose, basing the decision on the factors OKAN considers to be important, and evaluation should include a decision of the assumptions made. तो assumptions हम लोग तो वैसे लिख देंगे। इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट अज्यूम किया गया, वैसे तो वो लोग ने खुद से भी बहुत सारी चीजें दी हुई है। बट एपीवी अगर हम्म हम देखें और एनपीवी अगर हम देखें, तो उसमें अल्फा का सबसे ज्यादा आ रहा है, बराबर है। हम्म, लेकिन जो ड्यूरेशन है, मैकॉलेज ड्यूरेशन या जो भी, उसमें 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 भी अल्फा का ज्यादा आ रहा है, विच इज बैड एक्चुअली। मतलब अल्फा को हाँ ज्यादा टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट में रिटर्न्स लेके देने के लिए, हम बोल सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए, प्रोजेक्ट कौन सा लेना चाहिए? मतलब इसमें तो फिलहाल अपन ये सब अजम्पशंस लिखेंगे ये सब लिखेंगे फिर एंड में हम हम्म। लाइक जनरल सेंटेंस डालेंगे कि भाई ये दोनों पे आर्ग्यूएबल है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है और इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। बाकी हम्म। सारे फैक्टर्स भी कंसिडर दे करने के बाद विच एवर हम्म। इज फिजिबल प्रोजेक्ट वो लेना बेटर है करके राइट। एक्चुअली मैं कि हमेशा एक पॉइंट उसका यूज करता हूँ जब दो प्रोजेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग आता है तभी। वो है कि कंसिडरिंग दैट बोथ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन नेचर। कि वो दोनों सच में हम्म म्यूचुअली हम्म एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, कि हम दोनों में भी डाल सकते हैं थोड़ा और डेट लेके वगैरह हम्म वगैरह हम्म वैसा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। या फिर कैपिटल रैशनिंग का कर सकते हैं क्या, बाकी के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वगैरह, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो वो सब प्रोजेक्ट जस्टिफाइबल है, लेकिन उन्होंने बोला एक आंसर तो देना ही है। तो आई फील एक अगर हमको देना है तो मैं अल्फा दे दूंगा, आई फील। है ना? हाँ बिकॉज एनपीवी उसका ज्यादा है और हम्म। मोस्ट एग्जैक्टली। कंसिडरेबल अपन एनपीवी के भरोसे पे ही चलते हैं। या आई आल्सो फील द सेम वे। चेक करते हैं।
ये दी उन्होंने रिपोर्ट. The report evaluates and provides a justification and the decision on whether OCON company should pursue Project Alpha or Beta based on the important factors identified by the company, namely the returns generated by the projects and the project risks and non-financial aspects. Evaluation, financing. यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट्स हेज एंड द एक्सपेक्टेड रिसीड इन 6 मंथ्स टाइम रिजल्ट्स. तो ये सब इन्होंने बोला हुआ है कि फॉरवर्ड मार्केट हेज जीत रहा है, तो ये सब की वजह से डेट बोरोइंग हमको इतनी लेनी चाहिए. लेकिन हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड और मनी मार्केट को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग बाकी के हेजिंग टेक्निक्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं. तो वो सब भी हम्म कंसिडर करना चाहिए, ऐसा सब बोल के आगे बढ़ते हैं. बाकी ये तो हमने वही जो लिखा हुआ था यही सब इन्होंने यहाँ पे समरी के फॉर्म में दिया हुआ है. आगे, Project Alpha and Project Beta's base case NPV and APVs are similar to each other, with Project Alpha expected to yield a small amount in excess to the yield expected from Project Beta. However, Project Beta's project duration is significantly lower. This is because a higher proportion of Project Beta's cash flows come earlier in the project's life compared to Project Alpha. There is more certainty to earlier cash flows, and this is reflected in the lower duration of Project Beta. Project Beta's risk is lower than प्रोजेक्ट अल्फाज. ठीक है, ये इन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट बीटा का रिस्क लोअर है देन प्रोजेक्ट अल्फाज, मतलब वो ड्यूरेशन के हिसाब से बोला है ये लोग ने. In estimating the base case NPV and the APV of the project alpha, it is assumed that the cash flows are known with reasonable certainty and the inflation rates will not change during the life of the project. It is also assumed that the future exchange rate between the yield dollar and the pounds will change in accordance with the purchasing power parity differential. Furthermore, it is assumed that the prices and the costs related to Project Alpha will increase in line with the inflation during the 6 months before the project starts. हम्म. तो ये सब assumptions मैंने सबसे पहले बताए हुए हैं, वो सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग वो लिख ही देंगे assumptions. हम्म While the level of detail is not provided project beta, it is assumed that similar assumptions will be made in project beta. हाँ, तो ओ वाह, ये काफी एक्चुअली अच्छी लाइन है कि उन्होंने प्रोजेक्ट बीटा के लिए बहुत ही छोटी सी लाइन दी है और बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन दिया है. लेकिन उसमें भी उन्होंने हमको फ्री कैश फ्लोज नहीं, उन्होंने हमको प्रेजेंट वैल्यू दिया है. सो दे आर सेइंग कि प्रेजेंट वैल्यू तक आने के लिए इन्होंने सेम ही चीजें assumptions अप्लाई किए होंगे प्रोजेक्ट बीटा के लिए, ऐसा. which kind of makes sense. नो, और फिर बाकी सब बोला हुआ है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस करने चाहिए, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब बोला हुआ है. नॉट विथ स्टैंडिंग द assumptions एंड caveats मेड above, it would appear that project beta would be preferable to project alpha. Oh, okay. So उन्होंने project beta को select किया है, given that it has a similar APV but a significantly lower risk. So they basically deducted saying कि हाँ. NPV तो है ही, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ड्यूरेशन कम है इसलिए रिस्क कम है, ऐसा. आप क्या बोल रहे थे? वही वही रिस्क ड्यूरेशन की वजह से रिस्क कम है इसलिए वो लोग बीटा की तरफ जा रहे हैं. हम्म. Nevertheless, there may be a good strategic reasons why OCON may select Project Alpha over Project Beta. For example, these reasons may include providing access to new markets, enabling OCON company to erect barriers to entry against competitors, or look at follow-on opportunities as possible real options. Justification: due to substantial lower risk as measured by the project duration and similar APV, it is recommended that project beta is selected by OCON company. It is also recommended that forward markets are used to hedge and income expected in 6 months time to part fund the project. This would minimize the debt borrowing needed. Actually अपन इस केस में ये बोल सकते हैं कि we can also invest the amount which we will be receiving. लाइक जो हमको अमाउंट मिल रही हम्म थी वो हम बैंक में डाल के इंटरेस्ट रेट्स और कमाने का ट्राई कर सकते हैं, ऐसा. या फिर हाँ. किसी बेटर बैंक में डाल के ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने का ट्राई करते हैं, ये सब भी बोल सकते हैं. However, the decision is predicted on the fact that implications of the assumptions and the wider strategic reasons discussed above have been carefully considered by OCON company. Report compiled by date and note. ठीक है. Last.
Discuss why OKAN company's subsidiary company may be exposed to economic risk, that is economic exposure, and how it may be managed. अगर subsidiary company expose होगी economic risk को तो how will it be managed? यहाँ पे दिया हुआ है one of OKAN company's subsidiary companies is in Yasia land which produces and sells all its products domestically has still found that it is exposed to economic risk, that is economic exposure. The directors of the subsidiary believe that this is because Yasia Land's government has maintained comparatively higher interest rates, even though the inflation in Yasia Land is now in control. आप बताओ अभी आंसर क्या क्या ये पूरा थियोरेटिकल आंसर आएगा ना हम्म रिस्क पढ़े क्या थियरी से पढ़े हाँ ओके आप पढ़ो ना जरा इस बार explain why subsidiary company may be exposed to the economic risk and how it may be managed. Companies हम्म face economic exposure when there is a competitive position हम्म is affected due to macroeconomic factors such as change in currency rate, political stability, or change in regulatory environment. Long-term economic exposure or economic stocks can cause a permanent shift in the purchasing power and the other party conditions. Normally, companies face economic exposure when they trade internationally. हम्म However, even companies which do not trade internationally nor rely on the input source internationally may still face the economic exposure. In this case of OKAN companies, subsidiary company, economic risk may have occurred because interest rate have kept at a higher level, causing the original partly condition to break down. High interest rate will be attractive to the international investor as they can get a higher return and may lead to the yen dollar become stronger relative to the other countries. This in turn would allow the international competitors to produce goods more cheaply than the subsidiary company and thereby enhance their competitive position relative to the subsidiary company. Managing हम्म economic exposure is difficult due to its long lasting nature and because it can be difficult to identify. Financial instruments such as derivatives and money market cannot normally be used to match such risk. Companies subsidiary company can try tactics such as borrowing in international or euro currency market, resourcing input product from overseas supplier, and ultimately shifting production facilities overseas. None of these are easy or cheap and can expose the company to new type of risk. Open हम्म company would also need to assess that any action it takes to manage economic risks fit into its overall risk management strategy. तो बहुत ही बेसिक बस इकोनॉमिक रिस्क क्या रहता है एक्सचेंज रेट वगैरह का वो रहता है उसको हेज कैसे कर हाँ वही मैंने बोला हम्म पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन था हम्म ठीक है इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक रिस्क को थोड़ा सा तो ठीक ही है